Hello everyone. Today we will start our first chapter of history, and this is tracing changes through 1,000 years. Before starting this chapter, I want to tell you that the Indian historians have divided Indian history into three time periods: ancient, medieval, and modern period. In your previous class, you have read about the ancient period. You read about the hunter-gatherer, early humans, early farmers, people living in the town and villages. You read the invention of wheel and early empires and kingdom. But in this class, you will be studying the period which is described as medieval. You will find out more about the spread of peasant societies, the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam and many other religions, and the arrival of European trading companies. In this chapter, we will read about the changes of which has take place in 1,000 years time period. And these thousands years of Indian history witnessed considerable change. ये जो 1,000 years हैं ये लगातार होने वाले changes के witness हैं, because the 16th and 18th century were quite different from the 8th and 11th centuries. It means entire जो ये time period है history का, इसमें बहुत सारे changes आए, बहुत सारे development आए. In your next class you will read about the modern period. Modernity, this word carries a sense of material progress and intellectual advancement. It means इसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में, उसमें होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, जिस प्रॉस्पेरिटी से अट्रैक्ट होकर जो फॉरेनर्स थे, जो यूरोपियन पीपल थे, वो उन्होंने यहाँ पर अपनी कैसे ट्रेडिंग कंपनीज को सेटल किया. Now we will start the chapter. This chapter start with a map. There is a map on page number 1 which was made by Al-Idrisi, an Arab geographer. And this map was made in 1154. The section reproduced here a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. But there is another map on page number 2, and which was made by a French cartographer in 1720s. Both maps gives us the information about the Indian continent. But both maps are quite different even though they are the same area. Because in Al-Idrisi map, South India is where we found expect to find North India, and Sri Lanka is the island at the top. In Al-Idrisi map, we found south on the top. But today, which map we use? Sri Lanka in the bottom. And in the second map, which was made by a French cartographer, Sri Lanka is also on the bottom. And the second map is more familiar, more similar to us. It is more familiar to us, and it is more similar with the map we use that today. But in Al-Idrisi map, there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the map as Kannauj, Qanauj. It means spelling is some different, but Kannauj को यूज़ किया गया है उस मैप में. दोनों मैप के टाइम पीरियड में काफ़ी डिफरेंसेस है, लगभग 600 ईयर्स का डिफरेंसेस है दोनों के बनने में. जो फर्स्ट मैप है वो 600 ईयर्स पहले बना था सेकंड मैप से, इसलिए टाइम के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुए, जो चेंजेस हुए, वो उसमें शो नहीं है. और एल इदरीसी द्वारा जो मैप बनाया गया था, दैट मैप, उस मैप में अरेबिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ है प्लेसेस के नेम के लिए. द सेकेंड मैप इज़ मोर फैमिलियर, सो इट्स गिव अस द मोर डिटेल्स अबाउट द कोस्टल एरियाज, but fixed details about the coastal areas. So the Europeans, sailors and merchants who came to India, they came to India with the help of this second map, because that time this map is available and they use this map.
टाइम के साथ साथ चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुए, हिस्ट्रियन को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, मैप्स मिले, जिनकी हेल्प से उन्होंने उस टाइम के बारे में, उस टाइम के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और जो हमें आज के टाइम में जिसे हम आज के टाइम में जान पा रहे हैं। सिर्फ इन चीज़ों में, मैप्स वगैरह में ही चेंजेस ना आए, चेंजेस उस टाइम की लैंग्वेज और लैंग्वेज के साथ साथ मीनिंग्स में भी चेंजेस आए। जो मिडिवियल पर्सियन लैंग्वेज थी वो मॉडर्न पर्सियन लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट थी। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन यू, जो ये लैंग्वेज में डिफरेंस था, इसके साथ साथ मीनिंग में डिफरेंस था, और मीनिंग में डिफरेंस के साथ साथ जो ग्रामर और वोकेबलरी थी उसमें भी चेंजेस थे। दैट टाइम राइटिंग जो यूज होती थी, जो कर्सिव और इजी राइटिंग थी, दैट कॉल्ड द नेस्टेलिक। एंड जो डेंस और डिफिकल्ट लैंग्वेज थी उस टाइम की, दैट कॉल्ड द सिकास्ते। इट मीन्स सिकास्ते इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज और उसे अंडरस्टैंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, बट नेस्टेलिक इज अ ईजी लैंग्वेज, और ये कर्सिव लैंग्वेज थी जिसको ईजिली समझा जा सकता था। इसके अलावा वर्ड्स में भी चेंजेस आते गए टाइम के साथ साथ। 13th सेंचुरी में एक हिस्ट्रियन थे मिनाज सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया। उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड इस वर्ड से पंजाब, हरियाणा और गंगा एंड यमुना के बीच का जो स्टेट था, जो लैंड थी, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान का वर्ड का यूज़ किया। बिकॉज ही टोल्ड अबाउट दिस वर्ड दैट दिस वॉज द एरिया विच इज़ रूल्ड बाय द Delhi Sultan. But in 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the cultural of the inhabitants of subcontinent. And as well we will see later in the chapter. And in the 14th century, a poet Amir Khusro used the word Hind. उन्होंने भी हिंद वर्ड का यूज़ किया। Now we will हिंदुस्तान as India. अभी हम हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से जानते हैं ना। मिडिवियल टाइम में हिंदुस्तान, जो मिनाज सिराज ने नाम दिया था, अभी हम उसे इंडिया के नाम से जानते हैं। टुडे दिस इज इंडिया। कुछ और भी चेंजेस आए लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स आए जिनका टाइम के साथ साथ उनका मीनिंग भी चेंज होने लगा। बिकॉज कुछ अलग अलग वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनका पास्ट में कुछ और मीनिंग था, अभी कुछ और मीनिंग हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल टर्म लाइक फॉरनर, इट इज यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। बट इन द मिडिवियल पीरियड, अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंज हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। इट मीन्स मिडिवियल पीरियड में फॉरनर वर्ड का यूज़ होता था एक ऐसे पर्सन के लिए जो विलेज का पर्सन नहीं होता था, जो बाहर से आता था, जो सोसाइटी और उस कल्चर से के लिए स्ट्रेंज होता था। इट मीन्स हिंदी में हम यूज़ करते हैं ना, जैसे परदेसी वर्ड या फिर पर्सियन लैंग्वेज का वर्ड है अजनबी। इट मीन्स द पर्सन विच इज हु इज स्ट्रेंज फॉर अस। बट इन द एंशिएंट टाइम, सिटी ड्वेलर रिगार्डेड as a forest dweller as a foreigner. It means city dwellers के लिए जो foreign dwellers थे वो एक foreigner थे, because they don't know that कि वो कौन है, वो नहीं जानते थे कि वो कौन है, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो नहीं जानते थे, इसलिए वो उन्हें foreigner कह के बुलाते थे। इट मीन्स दोनों अलग अलग टाइम पीरियड पर ये foreigner वर्ड से अलग अलग मीनिंग निकाले गए। Now we will about the sources which gives us the detailed information about the ancient period and about the medieval period. Coins, inscription, architecture, textual records, these are the sources that gives us information. But there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period, and this displays slowly other types of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. It means ancient time में पेपर अवेलेबल नहीं था, तो लोग जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी उन्हें वॉश करते थे एंड ड्राइड द पेपर एंड यूज्ड इट, सुखाते थे, उसके बाद पेपर का यूज़ करते थे। बट मिडिवियल पीरियड में पेपर चीपर था और बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी था, इसलिए लोग हॉली टेक्स्ट बुक पेपर्स पे किताबें लिखना
शुरू किया। हैंड रिटन बुक्स होती थी, हैंड रिटन बुक्स को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। इट मीन्स दैट टाइम देयर इज नो प्रिंटिंग प्रेस। इट मीन्स वहाँ पे कोई प्रिंटिंग, उस टाइम में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ नहीं होता था, इसलिए हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे और उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। और उसके बाद जो लोग इन मैन्यूस्क्रिप्ट से दूसरी बुक्स लिखते थे, इन्हें देखकर उन्हें स्क्राइब्स, जो लिखने वाले होते थे उन्हें स्क्राइब्स बोला जाता था, और जिनको कॉपी करके वो बुक लिखी जाती थी, जो बुक कॉपी करके लिखी जाती थी, उन्हें स्क्रिप्ट्स कहते थे। टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज आर द places where the manuscript and scribes also collected। बाद में लाइब्रेरीज और आर्चीव्स ने इन मोनेस्ट्री और टेम्पल का रूप ले लिया और यहाँ पर इन मैन्यूस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। बिकॉज दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन टू हिस्ट्रियन, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। बिकॉज अलग अलग टाइम पीरियड में जो ये स्क्रिप्ट लिखी गई, अलग अलग लोगों ने इनको लिखा, अलग अलग लोगों ने इनको कॉपी किया, तो कॉपीड करते टाइम बहुत सारे चेंजेस आ गए वर्ड्स में। लाइक दैट इफ़ यू आर एब्सेंट टू योर स्कूल, यू यूज़ योर फ्रेंड्स नोटबुक टू नोट द होमवर्क ऑफ दैट डे, सॉरी क्लास वर्क ऑफ दैट डे। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं जो आपको नहीं समझ आते, आप उन्हें अपने हिसाब से सोच के कुछ और लिख देते हो। दैट मीन्स वहाँ वर्ड चेंज हो जाते हैं एंड मीनिंग भी चेंज हो जाता है। इसी तरह इन स्क्रिप्ट्स को जो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई, इनकी लैंग्वेज में, इनकी राइटिंग में, इनके वर्ड्स में और उन वर्ड्स के मीनिंग में टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आते चले गए। और ये जो एक्चुअल जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, उस एक्चुअल मैन्यूस्क्रिप्ट से इन स्क्रिप्ट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। और जब एक हिस्ट्रियंस एक ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ते थे और एक बाकी जो अदर स्क्रिप्ट्स होती थी उन्हें पढ़ते थे, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस उन्हें दिखाई देते थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द इनोवेशन ऑफ द मिडीवियल पीरियड। पर्सियन व्हील, दिस इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन। स्पिनिंग व्हील, दिस इज यूज्ड फॉर वीविंग। फायर आर्म्स, कॉम्बैट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनका यूज़ किया जाता था। एंड दैट टाइम सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, नई नई फूड क्रॉप्स आई, बेवरेजेस आए सब कॉन्टिनेंट में, लाइक पोटैटो, चिली, कॉर्न, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. It means ये जो टाइम पीरियड था ये हमारे लिए सिर्फ उस टाइम के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस भी इस टाइम में बहुत ज़्यादा हुए। वी विल लर्न अबाउट दीज चेंजेस इन द chapters 5, 6 and 7. This was also a period of great mobility. बहुत जब ऐसा पीरियड था ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, अलग अलग ग्रुप के लोगों ने अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में अलग अलग जगह पर जाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पॉसिबिलिटीज़ थी कि उन्हें उन पीपल को कि उनका दे आर गोइंग इन द सर्च ऑफ देयर फॉर्च्यून। And one group of the people who became important in this period were the Rajputs. Rajputs, we can say them Rajputras, Akshatriya, and they are famous for their valor and loyalty. राजपूत अपनी लॉयल्टी, वफादारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनके अलावा उस टाइम पे मिडिवियल पीरियड में मराठा, सिख, जाट, अहोम्स इज़ अ ट्राइबल ग्रुप, और कायस्था, दीज आर द पीपल हु copy the scribes. They work as a scribe. It means manuscript से कॉपी करने का काम कायस्थ लोग करते थे। तो these are the famous social group of that time. और इसके साथ साथ अलग अलग इन जातियों के लोगों ने, अलग अलग इन ग्रुप्स के पीपल ने अपनी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। Jatis framed their own rules and regulation to manage and to conduct of their members, and these regulations were enforced by an assembly of elders. It means assembly का कोई भी एक बड़ा
इंसान इन रेगुलेशन को लोगों को बताता था कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं और वो इन्हें फॉलो करते थे। और जो असेंबली का बड़ा हेड होता था या जो पीपल का ग्रुप्स होता था इन असेंबली को कंडक्ट करने के लिए, उन्हें उन्हीं असेंबलीज को जाति पंचायत भी कहते थे। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज एंड सेवरल विलेज वर गवर्नड बाय अ चिफ्टेन्स. Together they were only one small unit of a state. Some points of this chapter are remained because this is a large chapter, so I will explain these points in the next video. Thank you.